Assalamu alaikum students. Today we will start chapter 7, that is study of compounds. Here you have to study 4 compounds: hydrogen chloride, ammonia, nitric acid and sulfuric acid. We will study part wise. Okay, first we will study hydrogen chloride. So hydrogen chloride gas, and then we will study hydrochloric acid, which is basically hydrogen chloride gas dissolved in water. Okay. Now hydrogen chloride gas discovery. A solution of hydrogen chloride gas was named muriatic acid. So hydrogen chloride gas is only termed as muriatic acid. So which acid is termed as muriatic acid? Hydrogen chloride gas or hydrochloric acid is termed as muriatic acid. Okay. Now occurrence. Hydrogen chloride occurs in the free state in volcanic gases and in gastric juice of mammals. Okay. Now HCl is a polar covalent compound because the bond between hydrogen and chlorine is covalent, and that too polar. Why? Because of the difference in the electronegativities of hydrogen and chlorine. Now preparation of hydrogen chloride gas. First is by direct combination or synthesis. Hydrogen gas and chlorine are directly reacted in presence of diffuse sunlight. In direct sunlight the reaction got explosive. The reaction get explosive. Okay, the reaction is explosive in direct sunlight and negligible in the dark. That means the reaction does not happen in the dark. Okay, so in presence of diffused sunlight, hydrogen and chlorine gases react together and form hydrogen chloride gas. Hence this reaction can be termed as photochemical reaction. Okay, the reaction that is taking place in the presence of sunlight. Which type of sunlight? Diffused sunlight. ठीक है, moisture act as a catalyst in the above synthesis reaction. Now by reaction of metallic chloride with concentrated sulfuric acid. Any metal chloride you can use. Okay, here we are taking NaCl plus sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, and heat at less than 200 degrees Celsius temperature. We will get metallic bisulfate or metal hydrogen sulfate plus hydrogen chloride gas is released. Okay, NaHSO4. Here we are taking NaCl and the other reactant is concentrated H2SO4. The reaction medium is less than 200 degrees Celsius temperature. We are getting sodium hydrogen sulfate or sodium bisulfate and hydrogen chloride gas. Okay. Now next is laboratory method of preparation of hydrogen chloride gas from sodium chloride and concentrated H2SO4. Okay. Heating a metallic chloride, that is NaCl, with concentrated sulfuric acid. Here you don't have to practice drawing the diagram. Okay. The question will be asked based on this diagram. This diagram will come itself and related questions will be asked. Okay, so you have to study this diagram thoroughly, but you don't have to practice drawing it. Okay, so this in this round bottom flask X, sodium chloride, aqueous sodium chloride is taken. Okay, now from the thistle funnel, this thistle funnel, concentrated sulfuric acid is poured into this flask, round bottom flask. Okay, now this one is the delivery tube, this one is the delivery tube, and in this container, that is washer bottle, we have taken concentrated sulfuric acid. This washer bottle A contain concentrated sulfuric acid that is acting as a drying agent here. It removes the moisture from the हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डेट इज़ बीइंग फॉर्म्ड. ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो इसमें बनेगी वो पास होगी डिलीवरी ट्यूब से, इधर आएगी किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट हियर. It will remove moisture and this dry gas will be further collected into this cylinder. Okay, in this cylinder again delivery tube से पास होती हुई इस cylinder में आएगी. Y cylinder में dry HCl gas will be collected by upward displacement of air. By upward displacement. Now why by upward displacement? Because hydrogen chloride gas is denser than air. Okay, vapor density of air is nearly 14.4 something. And vapor density of HCl gas. What is vapor density? Vapor density is half of molecular mass ना. So HCl का molecular mass कितना है बेटा? Hydrogen 1 plus chlorine 35.5, that is 36.5. Now 36.5 का half कर दो तो कितना हो गया? 18.25 something. So dry HCl gas has vapor density 18.25. Hence it is denser than air. तो इस वजह से इसको हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? By upward displacement of air. Now see the reaction. NaCl plus concentrated H2SO4. NaCl is also termed as rock salt plus concentrated H2SO4. When heated at less than 200 degrees Celsius, it is forming sodium hydrogen sulfate or sodium bisulfate, and hydrogen chloride gas is also formed. Okay,
नाउ रिएक्टेंट्स यू हैव टेकन सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. प्रोडक्ट्स क्या हो गए? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. प्रोसीजर आपको समझ में आ गया है. रिएक्टेंट सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर इनिशियली स्लोली हीटेड, ओके, इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क. Now, observation, the HCl gas obtained in the round bottom flask X passes through the delivery tube, bubbles through the drying agent in the washer bottle and the dry gas is then collected in this glass jar. ठीक है. प्योरिफिकेशन कैसे प्योर किया गया? बाय पैसेज थ्रू वॉशर बॉटल. द ओनली इम्प्योरिटी डेट इज प्रेजेंट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज मॉइस्चर. तो इसको हमने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वॉशर बॉटल ए में पास किया. डैट कंटेन्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट हियर, ओके, and it is absorbing moisture. Now dry gas will be collected. Precautions: reaction mixture is initially heated very slowly to control the evolution of HCl gas. Okay, very slowly. Now the lower end of the thistle funnel should dip below the acid in the flask. This lower end of the thistle funnel should dip below the surface of the acid. Why beta? अदरवाइज द HCl गैस ऑब्टेन्ड विल एस्केप आउट फ्रॉम द थिसल फनल. जो भी बन रही होगी वो उससे ही एस्केप आउट कर जाएगी. नाउ कलेक्शन. ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. वाई इट इज हैवियर और डेंसर देन एयर. वाई इट इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. जैसे कि मेजरली गैसेज हम कलेक्ट कर रहे थे, ऑर्गेनिक में पढ़ा था, एल्केन्स और एल्कीन्स जो भी प्रोड्यूस हो रही थी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट हो रही थी. बट वाई वी डू नॉट कलेक्ट HCl by downward displacement of water, which is comparatively easier way. Why? Because HCl is highly soluble in water. HCl is highly soluble in water. ठीक है. Now pure identification. How we can identify that the gas being formed that in the glass jar is hydrogen chloride gas. A glass rod dipped in ammonia solution, concentrated ammonia solution में glass rod dip करके ग्लास जार के माउथ पे ले जाएंगे. अगर ग्लास जार में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी बेटा तो अमोनिया एंड HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. नाउ वाई दिस अमोनियम क्लोराइड is also important through some sort of. Now why it is important? It contain all three bonds in it. This ammonium chloride molecule has all three bonds, that is covalent bond, coordinate bond as well as ionic bond, okay, or electrovalent. It contain all three bonds in it. So ये भी याद रख लेना कि इस अमोनियम क्लोराइड में तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो आइडेंटिफिकेशन भी हो गया. आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? अगर ग्लास जार के माउथ पे हम क्या ले जाएंगे? अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया, तो HCl से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? अमोनियम क्लोराइड. एंड अमोनियम क्लोराइड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक डेंस वाइट फ्यूम्स. डेंस वाइट फ्यूम्स. ठीक है. नाउ द मेटालिक क्लोराइड प्रिफर्ड फॉर यूज इज NaCl and the acid is concentrated H2SO4. Why sodium chloride is preferred? You all know that sodium chloride is cheap and easily available. Now why concentrated H2SO4 is used? Because concentrated H2SO4 is non-volatile, that is it does not get easily converted into vapors at room temperature and has a high boiling point. ठीक है. Concentrated nitric acid cannot be used although it is a good oxidizing agent. Why? Because it is volatile and may volatilize out along with the hydrogen chloride gas formed. ठीक है. तो रिएक्टेंट्स वेस्ट होंगे और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्योर फॉर्म में भी नहीं मिलेगी. ठीक है. नाउ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस इज प्रिफर्ड. वाई? नाउ why the temperature below 200 degrees Celsius has to be maintained? Why beta? Because at above 200 degrees Celsius temperature, sodium chloride and sulfuric acid react together and form sodium sulfate and hydrogen chloride gas. That means at high temperature the reactivity of sodium chloride increases. Two molecules are being reacting with one molecule of sulfuric acid and forming sodium sulfate, and this sodium sulfate forms a hard crust and stick to the glassware and it is difficult to remove. ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूल भी वेस्ट होगा क्योंकि हम फ्यूल एपरेटस को हीट कर रहे हैं तो फ्यूल भी वेस्ट होगा. अब ज़्यादा एक्सेस में हीट करना होगा तो. एंड ग्लास एपरेटस में टेंड टू क्रैक. ठीक है. नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. कैसे प्योरीफाई करा? क्यों हमने ड्राइंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लिया? कॉमन
ड्राइंग एजेंट क्विक लाइम क्यों नहीं लिया? वाई? बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड और द क्विक लाइम इज बेस, इट इज़ बेस, ठीक है। और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी जनरली यूज़ होता है एज अ ड्राइंग एजेंट। ये दोनों में से कोई भी नहीं यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं, बेसिक हैं। दे विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एसिडिक है, HCl इज एसिडिक, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस 3HCl गिव फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये भी रिएक्ट कर जाएगा, ओके। नाउ कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। वाई? बिकॉज it is heavier than air, okay। it is not collected over water, why? because it is highly soluble in water, ठीक है। now properties of hydrogen chloride gas। first is physical properties, that is color, odor and taste। it is a colorless, pungent, choking odor, slight sour taste, okay। acidic है तो sour taste है। physiological nature, non poisonous है, if inhaled cause burning sensation, ठीक है, जलन ऐसी होगी हलक में। density 1.28 times heavier than air, एज ऑब्वियस है ना। वेपर डेंसिटी इसकी 18.25 है, एयर की 14.4 है, लगभग 1.28 टाइम्स हैवियर है एयर से। सॉलिबिलिटी हाईली सॉलिबल इन वाटर। HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्चर ड्यू टू इट्स हाई सॉलिबिलिटी। HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्चर, ठीक है, फ्यूम फॉर्म करने लगती है, वाई? एंड फॉर्म्स अ मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड ड्यू टू इट्स हाई सॉलिबिलिटी। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट अभी देख रहे हैं। लिक्विफैक्शन, इट लिक्विफाइज एट टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री एंड प्रेशर इज 40 ATM पे क्या कर जाती है, लिक्विफाई कर जाती है। इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। बॉइलिंग पॉइंट है -83 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग -113। ये डेटा आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है बेटा, ठीक है। नाउ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो डैट HCl गैस इज हैवियर देन एयर। इन्होंने एक कंटेनर में, एम्प्टी जार में क्या लिया है, बर्निंग कैंडल ली है, ऊपर ग्लास जार में ले ली है ड्राई HCl गैस। करा क्या है, प्रोसीजर, HCl गैस फ्रॉम द ड्राई गैस जार इज पोर्ड इनटू द लोअर जार कंटेनिंग द बर्निंग कैंडल। अब इसमें पोर करा तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ हैवियर, तो ये एयर को डिस्प्लेस कर देगी जो एम्प्टी जार में था। बीइंग हैवियर देन एयर, इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम द एयर फ्रॉम द लोअर जार एंड हेंस, और ये है कैसी, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, ठीक है, तो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है, बुझ जाएगी। और अगर हमने इस जार में ब्लू लिटमस रखा था तो बीइंग एसिडिक इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। नाउ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाई सॉलिबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। एपरेटस इन्होंने क्या क्या लिया है, ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क फिल विद ड्राई HCl गैस, और इसको उल्टा लगा दिया है, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म में लगा दिया है। माउथ ऑफ द फ्लास्क हैज़ अ रबर स्टॉपर, माउथ पे रबर स्टॉपर है। अगेन बता रहे हैं कि इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस नहीं करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम नहीं पूछा जाता है, ठीक है। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू स्टडी दिस डायग्राम बट नॉट प्रैक्टिस मेकिंग इट, ठीक है। माउथ ऑफ द फ्लास्क हैज़ अ रबर स्टॉपर विद 2 होल्स। अब 2 होल हैं इस रबर स्टॉपर में, देखो एक में क्या है बेटा, जेट ट्यूब है, ये ट्यूब, दिस इज जेट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर में वाटर है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ब्लू लिटमस, इस ट्रफ में कंटेनर में ब्लू लिटमस सोल्यूशन ले लिया है। क्यों ब्लू लिटमस लिया है, क्योंकि हम एसिडिक नेचर इसका पढ़ रहे हैं, एंड यू ऑल नो दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। प्रोसीजर में क्या है, द ड्रॉपर कंटेनिंग वाटर इज स्क्वीज्ड, इसको स्क्वीज करेंगे, वाटर एंटर्स द फ्लास्क, वाटर फ्लास्क में एंटर करेगा, एंड यू ऑल नो दैट ड्राई HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या होगा, HCl गैस विल डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, HCl गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी क्रिएटिंग अ पार्शियल वैक्यूम इन द फ्लास्क। अब जो भी HCl गैस थी वो तो डिजॉल्व हो गई वाटर में, तो पार्शियल वैक्यूम हो गया फ्लास्क में, है ना, वैक्यूम हो गया बिकॉज एयर तो चली गई, जो भी वो गैस थी वो तो डिजॉल्व हो गई वाटर में, ठीक। द आउटसाइड प्रेशर बीइंग हायर पुशेस द ब्लू लिटमस सोल्यूशन अप द जेट ट्यूब। अब आउटसाइड प्रेशर हायर था तो प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता है कि हमेशा सोल्यूशन लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहता है, तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन इधर बाहर हायर प्रेशर था, लोअर प्रेशर, ये फॉरन जेट ट्यूब में जाएगा, ओके। द आउटसाइड प्रेशर बीइंग हायर पुशेस द ब्लू लिटमस सोल्यूशन अप द जेट ट्यूब विच इमर्जेज आउट। अब उसमें तो आपका ड्राई HCl गैस है, तो ये ब्लू लिटमस HCl का सोल्यूशन बन गया। अब HCl का सोल्यूशन क्या करेगा, HCl का सोल्यूशन इज एसिडिक, तो ये एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस जो ऊपर गई है जेट ट्यूब के थ्रू, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ठीक है। सो इमर्ज क्या होगा, रेड फाउंटेन की तरह इमर्ज होगा,
एंड इससे हम क्या इन्फर कर रहे हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड एसिडिक इन नेचर। दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एक आध बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। डायग्राम को स्टडी करना है। अगेन आई एम सेइंग दैट यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस ड्राइंग दिस डायग्राम, यू हैव टू स्टडी दिस डायग्राम थरली, ठीक। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। केमिकल रिएक्शंस देख लो, कंबस्टिबल नहीं होता है, नॉन कंबस्टिबल, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ना ही कंबस्शन को सपोर्ट करता है। डज नॉट बर्न, एक्सटिंग्विशेस अ ग्लोइंग स्प्लेंड, कोई भी जलती हुई चीज़ होगी उसको बुझा देगा, ठीक है, क्योंकि ये कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करता है। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, जैसे एसिड इंडिकेटर्स के लिए बिहेव करते हैं वैसे ये भी करेगी, क्यों, वाई, बिकॉज इट इज़ एसिडिक। मॉइस्ट लिटमस ब्लू को रेड कर देगी, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से पिंक टू रेड कर देगी। फिनोफ्थलीन कलरलेस है तो नो कलर चेंज विल बी देयर। फिनोफ्थलीन अल्कलाइन है तो फिनोफ्थलीन अल्कलीन पिंक होती है एंड इट विल गेट चेंज टू कलरलेस, ओके। नाउ थर्मल डिसोसिएशन at very high temperatures, that is the temperature above 500 degrees Celsius, HCl gas dissociates into hydrogen and chlorine gases, ठीक है। सो थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तब डिसोसिएशन हो रहा है, ओके। जो दो गैस मिल के बना रही थी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वही गैस जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम हीट करेंगे अबव 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वेरी लार्ज टेम्परेचर, then it will dissociate into its constituent gases, that is hydrogen and chlorine, ठीक है। Now reaction of hydrogen chloride gas on other substances such as ammonia. Ammonia is basic, you all know, ammonia basic होती है। When a gas jar containing hydrogen chloride gas is inverted over a jar full of ammonia gas, dense white fumes are formed. These fumes consist of particles of solid ammonium chloride suspended in air, ठीक है। तो ये फ्यूम्स क्यों बन रही हैं, फ्यूम्स क्यों दिख रही हैं, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं, सस्पेंड हो चुके हैं एयर में, and that leads to the formation of dense white fumes. Two gases, ammonia and HCl, combine to give a solid compound and that solid particles are dispersed in air, ठीक है, leading to the formation of dense white fumes. Metals, metals के साथ क्या करेंगे, displacement reaction देंगे, किन के साथ, active metals के साथ, that lie above hydrogen in the reactivity series, okay। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और metal chlorides will be formed and hydrogen gas will be released, ठीक है। zinc plus 2HCl will give ZnCl2, that is zinc chloride and H2 hydrogen gas. सिंपली मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा बेटा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैशियस. आयरन विल ऑल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉर्म्ड आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. मोर रिएक्टिव मेटल दैट इज the metal which lie above hydrogen in the reactivity series will displace hydrogen from hydrogen chloride gas and that leads to the formation of metallic chloride and release of H2 gas. ठीक है, ना इसके ही कंटिन्यूएशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबोरेटरी मेथड कैसे बनता है, मेयरली बाय डिजोल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर यूजिंग अ स्पेशल फनेल अरेंजमेंट. स्पेशल फनेल अरेंजमेंट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब इज avoided. Why? Because it will cause a back suction. What is back suction? Hydrogen chloride gas is extremely soluble in water. If a delivery tube through which HCl gas is passed is directly immersed in water, the rate of absorption of HCl gas is high. Okay? Why? Because it is highly soluble and hence a partial vacuum is created in the tube. तो क्या होगा बेटा, बाहर का प्रेशर हाई है, डिलीवरी ट्यूब का प्रेशर लो है, वाटर भागेगा अंदर. ठीक है, क्या होगा, वाटर विल मूव. The pressure outside being higher causes the water to be pushed up. Water will be pushed up into the delivery tube and damages the apparatus और इसको ही बोलते हैं बैक सक्शन. ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट के अंडर वाटर का मूवमेंट. ओके, नाउ स्पेशल अरेंजमेंट दैट इज फनेल अरेंजमेंट इज यूज फॉर अवॉइडिंग बैक सक्शन. दिस फनेल अरेंजमेंट, ठीक है, अभी हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है. ठीक है, और जैसे ही बैक सक्शन अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो फनेल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा. ठीक है, एयर गैप आ जाएगा एंड दैट प्रिवेंट्स बैक सक्शन. ठीक, now special arrangement funnel arrangement is used for avoiding back suction. The funnel arrangement prevents or minimize back suction of water, provides a large surface area for absorption of HCl gas. ठीक, अब ये देख लो इसमें क्या लिखा है, rim of the funnel is placed so that it touches the trough containing water. If back suction occurs, the water rises up in the funnel and the level outside the funnel falls, creating an air gap between the rim of the funnel and the surface of water. तो यहाँ पे हमने क्यों स्पेशल funnel arrangement लगाया है, to maximize the surface area and minimize the back suction. ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो एसिड के होते हैं जनरली कलर कलरलेस होता है, ओडर एंड टेस्ट स्लाइटली पंजेंट ओडर होता है. ठीक, शार्प
ओडर होता है, शार्प सार टेस्ट भी होता है, खट्टा होता है, ठीक, चखना नहीं कभी। लेकिन फिजियोलॉजिकल नेचर करोजिव होता है बेटा, ब्लिस्टर्स छाले पड़ जाते हैं स्किन पे अगर लग जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, डाइल्यूट से कुछ नहीं होता है। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी बिकॉज इट इज़ हाई डेंसर देन और हैवियर देन वाटर, ठीक है। डेंसिटी देखो वाटर से ज़्यादा है, वाटर की लगभग 1 ग्राम पर सीसी होती है। बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। वाई? बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के आसपास ही है, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बना लेता है, डेट इज एजियोट्रोप बना लेता है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है अभी। ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर एवॉल्व आउट द वेपर्स, छोड़ो, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बना लेता है वाटर के साथ, बस, बिकॉज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग आसपास सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये एसिड की तरह ही बिहेव करेगा। और ये कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है। इट कंटेन ओनली वन रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन आयन, ठीक है, मोनोबेसिक इन नेचर। डिसोसिएट कैसे करेगा? इन aqueous मीडियम इनटू H+ एंड Cl-, और H+ वाटर के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। वाटर को ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो एक नॉन बॉन्डिंग पेयर्स या लोन पेयर के साथ मिलकर क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। एसिडिक नेचर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन HCl इम्पार्ट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर शो एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है बेटा? दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस। अब ये भी डिसोसिएट या आयनाइज हो जाएगा ना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आयनाइज कैसे होगा? इनटू H+ एंड Cl-। अब देखो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसको सॉल्वेट ही नहीं कर पाएगा, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनटू H+ एंड Cl-। ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्वेट करेगा या डिसोसिएट करेगा और इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ HCl इन टाउलिन, टाउलिन कैसा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या करेगा? डज नॉट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज, और इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आयंस नहीं है। जिसमें ऑलरेडी आयंस होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं, इसमें ऑलरेडी आयंस नहीं है। इट इज़ अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट में आयंस होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें आयंस है नहीं, आयनाइज कर जाता है, ठीक है। वाटर इसको सॉल्वेट करके आयनाइज करा देता है, ओके। तो HCl will show acidic properties and its electrolytic nature in aqueous medium, that is water, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या गैशियस फेज में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। नाउ टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ये भी शो करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड प्लस एक्टिव मेटल क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो ये भी देगा। एक्टिव मेटल मीन्स द मेटल विच इज़ मोर एक्टिव, डैट इज विच लाई अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके साथ ये क्या दे देगा बेटा? मेटालिक क्लोराइड और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का एफरवेसेंस मीन्स बबल्स विल फॉर्म, ठीक है। तो सिमिलरली विद जिंक इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड H2 बबल्स इन अ लिक्विड। आयरन के साथ क्या दे देगा? आयरन क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। अब बेस के साथ क्या करता है एसिड? यू ऑल नो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद बेस। एसिड एंड बेस जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। नाउ व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड देखो, कॉपर ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन है तो क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम ऑक्साइड के साथ सिमिलरली सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब ये याद रखना, मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ क्या मिलेगा? HCl के साथ रिएक्शन ऑन रिएक्टिंग मेटालिक कार्बोनेट विद HCl क्या क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल क्लोराइड यानी सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ याद रखना क्या क्या मिल रहा है हमें। Along with salt and water, we are also getting carbon dioxide gas being evolved. Okay, so मेटालिक कार्बोनेट जैसे इन्होंने ले लिया, सोडियम कार्बोनेट क्या मिला HCl के साथ रिएक्ट करने पे? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बाइकार्बोनेट के साथ भी यही मिल रहा है, ठीक है, NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ मेटालिक सल्फाइड Te, डेट इज SO3 2- आयन जिसमें है, एंड मेटालिक बाई सल्फाइड जिसमें HSO3- आयन है। इसके साथ मेटालिक सल्फाइड एंड मेटालिक बाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा बेटा? अलॉन्ग विथ सॉल्ट एंड वाटर इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो मेटालिक सल्फाइड जैसे इन्होंने ले लिया MgSO3 डेट इज मैग्नीशियम सल्फाइड,
प्लस 2HCl विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस. नाउ मेटालिक बाइसल्फाइड फॉर एग्जाम्पल NaHSO3. NaHSO3 में Na प्लस इज द कैटायन एंड HSO3 माइनस इज द एनायन, ठीक है. ऑन रिएक्टिंग विद HCl इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, नाउ मेटालिक सल्फाइड जिसमें S2 माइनस है, सल्फाइड आयन इज देयर. सो Na प्लस इज द कैटायन एंड सल्फाइड इज द एनायन. S2 माइनस है, valency of sulfide is -2, hence 2 sodium plus ions are required to combine with 1 sulfide ion, ठीक है. तो Na2S प्लस 2HCl विल गिव. अब यहाँ पे देखो मेटालिक सल्फाइड के साथ क्या देगा बेटा, मेटालिक सल्फाइड के साथ इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कैरेक्टरिस्टिक रॉटन एग स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल. ओके, सिमिलरली आयरन सल्फाइड, आयरन 2 प्लस है तो सल्फाइड, आयरन की वैलेंसी 2 प्लस है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 माइनस है, तो FeS इज द फॉर्मूला हियर. ओके, तो आयरन सल्फाइड प्लस 2HCl विल गिव आयरन 2 क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक. अब देखो नाइट्रेट के साथ क्या दे देता है, नाइट्रेट के साथ सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. AgNO3 प्लस HCl, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ एंड एक का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ, ठीक है. तो AgNO3 प्लस HCl क्या दे देगा आपको, AgCl प्लस HNO3, ठीक. लेड नाइट्रेट, सिमिलरली लेड नाइट्रेट के साथ देखो क्या हो रहा है, वाइट PPT बनेगा. AgCl का भी कर्डी वाइट PPT होता है. ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है. डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसमें एक आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ PPT दैट इज अ रेसिड्यू दैट इज ऑब्टेन्ड और दैट sediment at the bottom of the container, okay, when the reaction has completed. So lead nitrate भी क्या देता है, वाइट PPT दे देता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. ओके, लेड नाइट्रेट कैसा PPT देता है, वाइट PPT ऑफ लेड क्लोराइड एंड HNO3 आपका सोल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा. ओके, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. थायोसल्फेट सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ना है. डैट सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2S2O3, बस रेफरेंस के लिए. S2O3 2 माइनस इज थायोसल्फेट आयन और सोडियम थायोसल्फेट. अब S2O3 2 माइनस है तो 2 माइनस है तो इट विल रिक्वायर 2 सोडियम आयंस बिकॉज सोडियम्स वैलेंसी इज +1, ठीक है. तो -2 को +2 चाहिए है ना, सो हैंस वी विल टेक हियर 2 सोडियम आयंस. तो Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेट्स इट, ठीक है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटिन्यूड. अब रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ठीक है. लेड 4th ऑक्साइड है PbO2. मैंगनीज डाइऑक्साइड भी, मैंगनीज इसमें बेटा +4 स्टेट में है, लेड +4 स्टेट में है. ये सारे मैंगनीज, लेड, क्रोमियम ये सब कैसे हैं, मैंगनीज लेड तो आपके हैं कैसे, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, क्रोमियम भी ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है. तो ये सब वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख लेना हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो आपके सिलेबस में हैं वो किस स्टेट में है. तो मैंगनीज इज इन +4, ठीक है. मैंगनीज +4 ऑक्साइड होता है MnO2. लेड 4th ऑक्साइड होता है PbO2, ठीक है. रेड लेड, ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड दैट इज Pb3O4. पोटेशियम पर मैंगनेट इज अ वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल. ओके, इट इज KMnO4. Mn is in +7 state here and potassium dichromate that is K2Cr2O7. क्रोमियम इज इन +6 स्टेट है, ठीक है. तो उसको छोड़ दो, उसको +6 +7 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रोडक्ट्स याद रखना है कि क्या बनेंगे, ठीक है. एक कॉमन ट्रेंड ही चलेगा, क्या क्या बनेगा, मेटालिक क्लोराइड बनेगा और वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है. अब क्लोरीन गैस तो कॉन्स्टेंटली रिलीज होगी ही होगी बिकॉज क्लोरीन गैस कहाँ से आ रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रही है, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपका वन ऑफ द रिएक्टेंट है ही है, ये फिक्स रिएक्टेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम चेंज कर करके रिएक्शन देख रहे हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फिक्स्ड है, ठीक है. तो क्लोरीन गैस तो रिलीज होगी होगी, वाटर तो होगा ही होगा, प्लस अब जो भी आपका कैटायन हो, जो भी मेटल है उसकी क्लोराइड बन जाएगी, ठीक है. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, ठीक. तो हमने पहले ले लिया मैंगनीज 4th ऑक्साइड दैट इज MnO2 प्लस HCl. यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन एज वेल, ठीक है. तो आपको क्या मिला, मेटालिक क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, मैंगनीज क्लोराइड हियर यू आर गेटिंग. जब मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, लेड डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तो वी आर गेटिंग लेड क्लोराइड एज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस बीइंग इवॉल्व्ड हियर. एंड ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड, लेड क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन एंड विद KMnO4. अब देखो इसमें 2 मेटल हैं, पोटेशियम एंड मैंगनीज, बोथ आर मेटल्स ना, सो बोथ विल फॉर्म सॉल्ट. ओके, तो
हमें इसका भी क्लोराइड मिलेगा, डैट इज पोटेशियम क्लोराइड एज वेल एज मैंगनीज क्लोराइड वी विल गेट अलॉन्ग विद वाटर एंड क्लोरीन। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमें, KMnO4 प्लस HCl, KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। ठीक है, now K2Cr2O7 again contain two metals, that is potassium and chromium, so we will get two chlorides, two metallic chlorides, that is potassium chloride and chromium chloride along with water and chlorine। ठीक है, now अब अदर यूज इसका क्या है, aqua regia के फॉर्मेशन में भी काम आता है क्या, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सचर होता है किसका, 1 part of concentrated HNO3 that is नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts of concentrated HCl बाय वॉल्यूम। ओके, सो aqua regia किसके लिए यूज़ होता है, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए जो ईजिली क्या नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट देता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब ये नेसेंट क्लोरीन क्या स्कैवेंजर की तरह काम करता है और ये इनको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, क्लोराइड्स बना देता है। नेसेंट क्लोरीन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, इनको घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है, क्लोराइड्स बना देता है। नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट्स विद नोबल मेटल्स फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग सॉल्युबल क्लोराइड्स, सो गोल्ड एज वेल एज प्लैटिनम डैट डू नॉट रिएक्ट ईजिली। ठीक है, तो ये aqua regia में डिसॉल्व करते हैं, सोनार लोग डिसॉल्व करते हैं, aqua regia यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, गोल्ड 3 क्लोराइड, प्लैटिनम के साथ प्लैटिनम 4th क्लोराइड। तो aqua regia क्या करता है, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ मेड बाय डिसॉल्विंग और मिक्सिंग 1 part of concentrated HNO3 and 3 parts of हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नाउ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट एक तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सोल्यूशन, क्या बनेंगे, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड हैं पार्टिकल्स किसके, अमोनियम क्लोराइड के, किसमें, एयर में, फॉर्म क्या कर रहे हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स बना रहे हैं। नाउ एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू डाइल्यूट HCl लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्डी वाइट PPT, दही की तरह फटा फटा PPT बनता है AgCl का। ठीक है, अब ये डाउन हेडेड एरो क्या शो कर रहा है, डैट मीन्स इट इज़ शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी ये सेडिमेंट कर गया, नीचे बैठ गया PPT। ठीक है, गैस के लिए हम अप हेडेड एरो लेते हैं। ठीक, नाउ अब देखो एक और टेस्ट है, लिटमस सोल्यूशन या पेपर जो भी ले लो, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा अगर कैसा है, एसिडिक है। तो HCl तो एसिडिक है ही है, तो ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन हो या पेपर हो, दोनों को ही रेड करेगा। ठीक है, नाउ AgCl प्लस 2NH4OH ये क्या करेगा, अब देखो अगर हम AgCl जो ऊपर बना उसमें हम एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन डाल दें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा PPT। क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, डायमीन सिल्वर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक, ना एक्शन ऑफ हीट ऑन अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अगर हम इसका पेस्ट बनाएंगे और हीट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन एवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस विल बी एवॉल्व। अब देखो आपको पता ही है मैंगनीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस इज बीइंग एवॉल्व। और क्लोरीन गैस कलरफुल होती है, किस कलर की होती है, ग्रीनिश येलो होती है। तो हमें कलरफुल गैस डैट इज ग्रीनिश येलो गैस अगर एवॉल्व होती हुई दिख रही है, हम पहचान जाएंगे डैट इट इज क्लोरीन गैस डैट इज बीइंग एवॉल्व। ओके, नाउ यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंडस्ट्रियल यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, पेंट, सिल्वर क्लोराइड फॉर फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैसे बन रही है, AgNO3 प्लस HCl मिल रहा है हमें सिल्वर क्लोराइड, एंड सिल्वर क्लोराइड इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए भी हमें स्टार्च को तोड़ते हैं। ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च क्या होता है बेटा, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ठीक है, इन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, टैनिंग इंडस्ट्रीज, सोल्डरिंग वर्क, जनरल यूजेस हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स बिफोर गैल्वेनाइजिंग। ठीक, अब ये अच्छे से यूजेस एक आध पढ़ लेना, aqua regia का प्रिपरेशन भी आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, अच्छे से यूजेस एक आध पढ़ लेना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, थैंक यू।